السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہم اپنے چیپٹر نمبر 3 کے سیکنڈ لیکچر کے ساتھ اگین آپ کے پاس حاضر ہیں۔ پلیز آپ لوگ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ بینیفیشنٹ اینڈ دا موسٹ مرسیفل۔ دعا ہم ہمیشہ ہر لیکچر کے سٹارٹنگ میں پڑھتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 3، نیم آف دا چیپٹر از بایو ڈائیورسٹی۔ اس میں ہم دو فرسٹ لیکچر اپنا کور کر چکے ہیں، جس میں ہم نے بایو ڈائیورسٹی کی ڈیفینیشن، اس کا انٹروڈکشن، دین اس کی امپورٹنس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کی تھی۔ آئی ہوپ سو آپ نے وہ لیکچر سنا ہوگا۔ ہمارا جو بک ہم فالو کر رہے ہیں دیٹ از آف فیڈرل بورڈ بایولوجی کلاس 9th۔ نیم آف دا بک ایز ویل ایز دا لائک اس کی پکچر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج جو ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے بایو ڈائیورسٹی چیپٹر نمبر 3 میں، وہ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایمز اینڈ پرنسپلز آف کلاسیفیکیشن۔ زمین پر جتنے بھی اینیملز جو ہیں وہ موجود ہیں، ان کی بہت سی مختلف ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ تقریباً اگر ہم اس کو اسٹیمیٹ کریں یا اس کا اندازہ لگائیں تو 15 لاکھ جو ہیں وہ اس سے زیادہ اقسام جانوروں کی اور 5 ملین سے زیادہ اقسام کے پودے ایسے ہیں جنہیں بایولوجسٹ جو ہے وہ جانتے ہیں، اور یہ تعداد ان تمام اقسام کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو اس زمین پر خیال کی جاتی ہے۔ یعنی اس سے زیادہ ورائٹی جو ہے وہ پائی جاتی ہے، جتنے بایولوجسٹ جانتے ہیں وہ تعداد بہت کم ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے پیچیدگی میں جاندار چھوٹے اور سادہ بیکٹیریا سے لے کر بڑے اور پیچیدہ انسانوں تک کا احاطہ کرتے ہیں۔ ان سے کچھ ان میں سے کچھ جو ہیں وہ لائک دے آر لیونگ ان واٹر، کچھ جو ہیں وہ خشکی پر رہتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو دونوں میں رہتے ہیں، یعنی پانی اور خشکی دونوں میں رہتے ہیں۔ ہر ایک کا جو ہے وہ طرز زندگی یا موڈ آف لائف ڈفرینٹ ہے، یعنی خوراک حاصل کرنے کے ہر ایک کے جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہے۔ نامناسب ماحولیاتی حالات سے بچنے کے لیے جگہ تلاش کرنا اور اپنے جیسے جاندار پیدا کرنے کے طریقے بھی الگ الگ ہیں۔ جب یہاں اتنی مختلف اقسام کے جاندار موجود ہیں تو ان تمام کی اقسام کی خصوصیات اور ان کی طرز زندگی کا علم حاصل رکھنا مشکل ہے۔ اتنے بڑے مجموعے کا مطالعہ کرنے کے لیے بایولوجسٹ جانداروں کے گروپس اور سب گروپس میں اس کو کلاسیفائی کر دیتے ہیں، یعنی ڈیوائڈ کر دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا جو مین مقصد ہے کلاسیفیکیشن کا وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹیکزونومی بایولوجی کی وہ شاخ ہے جس میں جانداروں کی کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ایک اور شاخ جو ہے وہ ایک اور شاخ سسٹمیٹک میں جانداروں کی کلاسیفیکیشن کرنے کے علاوہ ان کو ایوولوشن ڈیٹ جو ہے ان کی وہ بھی پتہ لگاتی ہے۔ ان دونوں کے جو برانچز ہیں ان کے اہم کچھ مقاصد ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ ٹھیک، سلائڈ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جانداروں کے مابین مشابہتیں اور اختلافات متعین کرنا تاکہ ان کو آسان مطالعہ کیا جا سکے، یعنی ان کی سملیرٹیز اور ڈفرینسز جو ہیں ان آرگینزمس کو دیکھنا۔ اسی کے علاوہ ان آرگینزمس کو پھر ان کی سملیرٹی اور ڈفرینسز کے حساب سے ارینج کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر ان آرگینزمس کو سسٹمیٹیکلی پڑھنا، آئیڈینٹیفائی کرنا، ٹھیک ہے، یعنی ان کو پہلے ان کا معائنہ کرنا، پھر ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ان کو اس ترتیب میں ڈیوائڈ کرنا۔ اس کے علاوہ ایوولوشنری ریلیشن شپ ان آرگینزمس کی آپس میں کیا ہے اس کو تلاش کرنا، یعنی جانداروں کے مابین ارتقائی رشتہ تلاش کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ مینلی آتی ہیں ایمز
एंड एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में, ताकि पता चले कि रीजन इसका क्या है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, यानी इनकी बुनियाद क्या है। तो क्लासिफिकेशन की बुनियाद जानदारों के माबैन ताल्लुक पर है, और ये ताल्लुक खुसूसियात में मुशाबत से मालूम किया जाता है। यानी ये जो सिमिलैरिटीज बताती हैं कि तमाम जानदार अपनी इर्तिकाई तारीख के किसी न किसी हिस्से में एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि एक जानदार का दूसरे जानदार से कोई ताल्लुक नहीं है डायरेक्टली, अभी हमें इनका कोई खास नजर नहीं आता, बट जब हम उसका एवोल्यूशन देखते हैं, यानी जहाँ से उनका इर्तिका हुआ या जिंदगी जहाँ से नमूदार होनी शुरू हुई, तो वहां हम देखते हैं कि उनमें कुछ सिमिलैरिटीज आपस में पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, चिड़िया का कबूतर से ज्यादा करीबी ताल्लुक है बनिस्बत हशरात से, यानी इंसेक्ट से नहीं है, देखा जाए तो उसका कबूतर से ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि स्पैरो और पिजन जो है, इनका इर्तिका या एवोल्यूशन की जो तारीख है वो सिमिलर है। ठीक। जब बायोलॉजिस्ट जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, तो जिस्म की अंदरूनी और बैरूनी साख्तों और उनके डेवलपमेंट के जो डिफरेंट स्टेजेस हैं वो देखते हैं। मॉडर्न जेनेटिक्स का इल्म भी एक और किस्म की मालूमात देता है। वो दो जानदारों के डीएनए में जो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस मालूम करके जानदारों को उनके फिजियोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल जो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं वो फिर मालूम किए जाते हैं। टेक्सोनोमी, जैसे हमने पहले बताया कि ये जो है वो जानदारों की क्लासिफिकेशन का एक तरीक़ाकार है। ठीक है। तो टेक्सोनोमी के जो है वो टेक्सा जिसको कहते हैं, जिसका सिंगुलर जो है वो टेक्सोन कहलाता है, और इनकी तरतीब को टेक्सोनोमी का निज़ाम कहते हैं। तमाम जानदारों को अगर हम देखें तो 5 किंगडम्स में वैसे तकसीम किया गया है, और किंगडम टेक्सोनोमी का सबसे बड़ा टेक्सोन जो है वो सिमिलैरिटीज की बुनियाद पर हर किंगडम को छोटे टेक्सोन में तकसीम कर दिया गया है। ठीक है। लाइक उसको यानी टेक्सोन को फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। पहले को जो फर्स्ट उसकी स्टेज है उसको हम फाइलम कहते हैं, फिर उसकी जो सेकंड स्टेज आती है उसको हम क्लास कहते हैं, फिर उसके बाद ऑर्डर आता है, देन फैमिली, देन जीनस, और फिर स्पीशी। ठीक है। तो स्पीशी मींस के सबसे छोटा यूनिट है, और सबसे बड़ा जैसे मैंने आपको बताया कि वो टेक्सोन था, और उसके बाद फाइलम से स्टार्ट हुआ था। सबसे ज्यादा जो सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं वो ऑफ कोर्स सबसे छोटे यूनिट स्पीशी में होंगी। ठीक है। क्योंकि वहाँ डिवाइड और रीडिवाइड और कर करके लाइक सिमिलैरिटीज जो है वो बहुत हद तक सेम हो जाती हैं। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन की बुनियादी जो मेन बेसिक अगर हम कहें यूनिट है वो स्पीशीज है। तो स्पीशीज ऐसे जानदारों का ग्रोह है जो नेचुरली तौर पर आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं, और उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो उनमें अहलियत मौजूद होती है। ठीक है। और आपस में इट मीन वो ब्रीड कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक ही स्पीशी के जानदार जो हैं वो सेक्सुअली दूसरी स्पीशी के जो जानदार हैं उनसे मुख्तलिफ होते हैं। ठीक। स्पीशी की तारीफ में हम फितरी तौर पर जरूर देना चाहते हैं, क्योंकि गैर फितरी हालात में दो मुख्तलिफ मगर करीबी स्पीशीज के जानदार भी आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या क्रॉस ब्रीडिंग कर सकते हैं। इस तरह के गैर फितरी क्रॉस में अमूमन वो जिनसी या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अहलियत से महरूम इनफर्टाइल जो ऑफस्प्रिंग है वो पैदा होती है। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम लाइक मेल डंकी और फीमेल हॉर्स की ब्रीडिंग करवाएं, ठीक, तो ये गैर फितरी क्रॉस है। ठीक। लेकिन इससे जो म्यूल पैदा होता है, या जो उसकी जो उनका लाइक आप कहेंगे कि जो ऑफस्प्रिंग है वो म्यूल बनती है। अब म्यूल इज एक्चुअली अ चाइल्ड विच कैन नॉट ब्रीड फर्दर
ठीक है, वो फर्दर ब्रीडिंग में पार्ट नहीं ले सकता। ठीक, तो यही मैंने आपको बताया है कि द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीशीज, और उसके बाद स्पीशीज की सिमिलैरिटीज आपस में किस हद तक होती हैं। ठीक, अब जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री क्या है, ये कब से इवॉल्व हुआ, इसके पीछे लाइक क्या क्या चीजें जो है वो मौजूद हैं। तो जानदारों की क्लासिफिकेशन का सबसे जो पहला सिस्टम बनाया गया है वो फिलोसोफर एरिस्टोटल ने बनाया था। इसने इस वक्त तक मालूम तमाम जानदारों के जो ग्रोह हैं, ग्रोह बंदी दो ग्रुप्स में की थी। ठीक, एक इसने कहा प्लांटी और एक एनिमिलिया। तो आप ये समझ लें कि 700 ईस्वी के पहले अशरे में अबू उस्मान उमर अल हिजाज ने अपनी किताब में जानवरों की, एनिमल्स की तकरीबन 350 स्पीशीज की खुसूसियात बयान की हैं। उन्होंने चींटियों के हालात जिंदगी के बारे में बहुत कुछ लिखा। अप्रोक्स 1172 में इब्ने रुश्द जो थे, उन्होंने क्लासिफिकेशन पर एरिस्टोटल की एक बुक जो है वो दी अनीमिया का अरबी तर्जुमा भी किया। 15वीं सदी के आखिर में बहुत से बायोलॉजिस्ट क्लासिफिकेशन के तरीकों पर काम शुरू कर चुके थे। इनमें से जो कुछ अहम इम्पोर्टेंट बायोलॉजिस्ट हैं उनके नाम मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। एंड्रियो कैसलपिनो साइंटिस्ट थे, इन्होंने पौधों को 15 ग्रुप्स में तकसीम किया था। ठीक है, और हर ग्रुप को इन्होंने जेनरा का नाम दिया था। फिर जॉन रे थे, इन्होंने पौधों की क्लासिफिकेशन पर काम किया और एक अहम काम किया जो शाया भी करवाया गया। इसके बाद ऑगस्टस रेविनस ने ऑर्डर्स का जो है वो टेक्सोन मुतारिफ कराया था, इंट्रोड्यूस उन्होंने ही करवाया था। फिर थे टॉर्टीफोर्ड, इन्होंने क्लास और स्पीशीज के जो है वो टेक्सोन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। फिर कार्लस लीनियस, इन्होंने सिमिलर बॉडी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक इन्होंने स्पीशीज की क्लासिफिकेशन की थी। तो मैंने अभी जैसे पिछले टॉपिक में आपको बताया भी था कि फाइलम से स्टार्ट होता है और स्पीशी तक जाता है, तो आप देख लें कि हर साइंटिस्ट ने इसमें कैसे अपना रोल प्ले किया है और एंड तक, लाइक कार्लिनियस वाज द लास्ट वन हु इंट्रोड्यूस्ड द स्पीशीज। बायोलॉजिस्ट ऐसे सिस्टम को यूजुअली देखें तरजीह देते हैं जिन जो इन्हें मुख्तलिफ जानदारों में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की ज्यादा से ज्यादा मालूमात दे सकें। शुरू के क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुताबिक जानदारों को दो किंगडम्स में तकसीम किया जाता था, लेकिन अब तमाम बायोलॉजिस्ट जो हैं वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के सिस्टम पर एग्रीड हैं। हम इन क्लासिफिकेशंस की बुनियाद आगे चल के पढ़ेंगे भी, और लेकिन हम ये है कि इसमें हम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि 2 किंगडम्स 3 किंगडम्स पर भी मुश्तमिल था, उनकी हम उनको उनको भी देखेंगे और उनके अंदर क्या फॉल्ट्स थे हम उनको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बट ये सब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ताकि कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप सो कि लेक्चर आपको क्लियर होगा। अ, चलें, ओके, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।